Hello there, everybody. Welcome back. Welcome back. Today we're going to watch and react to the latest Nitish Rajput video on the Ghazi attack. Link to the video will be in the description down below. Please go and, of course, watch it. Thumbs up it. Subscribe to Nitish Rajput. His videos are absolutely amazing, and I highly, highly recommend them. So, I did not know what this was in reference to. I had a vague understanding. So what I did was I went on to Wikipedia and Grokopedia just to get kind of, a generalized idea ahead of time before we actually get into the meat and potatoes, as some would say. It's very cringely American of me to say that. What a weird thing to say. Anyways, I went on to Wikipedia, and of course, Wikipedia's got its biases. I went on to Grokopedia, and of course, Grokopedia's got its biases. But I learned a little bit more. I read through it. I did not, go through this huge timeline of events and everything. I'm sure, this probably is like super detailed. I've been using Grokopedia quite a bit, and it's pretty nice. It's pretty good. I actually really like it. It seems to be just straightforward information without all the random fluff that, all the random biases that Wikipedia throws in. But we are going to watch this video today. So again, link down below, and we'll get it started. Drink of the day, by the way, is some nice a black cherry coffee. No creamer, no sugar, just cherry flavored coffee, I guess. From is this one from Brazil? I don't remember. लगानी शिप्स पे और फिर धमाके पे धमाके. Subtitles? I might need those. Not quite efficient enough to understand Hindi without it. प्लेस किए गए तो पाकिस्तान जाल में फंस गया और रॉ के दोनों एजेंट उसी शिप में छुप के पाकिस्तान पहुंचे. धोखा इसलिए हुआ क्योंकि मुक्ति वाहिनी के कमांडो डाल दिया ऑपरेशन एक्स में. रेडियो पे 2 गाने बजा के सिग्नल देंगे, उसी टाइम पे ऑपरेशन एक्स स्टार्ट कर देना. Wait, how? Wait, what is this angle? Okay, there's again, I only learned the very basics of it, and I guess that was more of like, hey, it's a submarine, and it was like the attack from Pakistan. Okay, let's go down here. The video explores the story of the PNS Ghazi submarine Pakistan sent from Karachi to the Bay of Bengal to hunt down the INS Vikrant and crush India's support to to East Pakistan. But destiny had other plans. The Indian naval secretly relocated Vikrant to a safe hidden anchorage and launched a brilliant deception to mislead Ghazi. I was not under the I didn't want to spoil myself. And here I am spoiling myself with this. INS Rajput and other naval units transmitted false radio signals and traffic mimicking Vikrant's movements, creating a perfect decoy. Dude, that's amazing. When I was looking this up, I saw that there was a movie on this, and yeah, this is like something straight out of a spy story. And yeah, maybe I need to watch the movie as well. That song, Operation X. ऑर्डर में जो पापा और माइक लिखा है, इसका मतलब था वेस्ट बंगाल में छुप के एक सीक्रेट कैंप बनाया और कोड रखा C2P. लेकिन हुआ उल्टा. वेस्टर्न कंट्री ने धोखा देके इंटेल पाकिस्तान को दे दी. आईएनएस राजपूत ने उसी जगह पे 2 बैक टू बैक फायर मारे. मैं वापस आऊं ना आऊं, लेकिन आईएनएस राजपूत जरूर वापस आएगा. The Ghazi attack. Exciting. आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आज के स्पॉन्सर उडू के बारे में. देखिए, काफी कंपनीज के Udu, 90 Indian rupees a month. That's very cheap, isn't it? Use perfect product link. Udu. We talked about Udu before. I don't remember what it was. एचआर अच्छी क्वालिटी हायरिंग करने की जगह अपना मोस्टली टाइम वेस्ट कर देता है एक्सेल शीट्स पे डेटा मेंटेन करने में. Grow your business. Link. You gotta love that little handy little button that YouTube inserts there. Again, check out Udu. Streamline your workforce. Grow your business.
इन द बायो। तो टॉपिक Links in पे the वापस bio. आते हैं। देखिए ईयर 1971 का जो टाइम था, इस टाइम पे पाकिस्तान दो पार्ट में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि आज का बांग्लादेश, यहाँ के लोग इनकी वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप जो इनके साथ लैंग्वेज वगैरह को लेके भेदभाव कर रही थी, उसके खिलाफ ये सड़कों पे आ गए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने 25 ऑफ मार्च 1971 को एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। मास में मर्डर हो रहे थे। What did that say? Following the Pakistan military's heinous barbarity, murder, rape, torture, and arson, a spat of people made a journey to the neighboring nation of India. An estimated nearly 10 million Bangladeshis left their motherland in an attempt to find a safe haven in India. You know what's sad about this is, persecution of Hindu Bangladeshis is still a thing. I talk about it, I bring it up when I can because it's still a major issue, and it's sad to see that Bangladesh now owes its sovereignty to India, and now they're turning on India and getting buddy buddy with Pakistan, getting buddy buddy with China, getting buddy buddy with Turkey, and they're pushing like the greater Bangladesh area, which shows maps taking over huge swaths of Indian territory, and it's like how quickly did you guys forget the the just the manpower, the people that were lost, the people that fought to protect you, to free you, man. अब 25 मार्च को जब ये क्रैकडाउन शुरू हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से लोग इंडिया के अंदर घुसने लगे। और ये जो लोग इंडिया के अंदर घुस रहे थे, ये नंबर कम नहीं था। डेली 50,000 से ज्यादा रिफ्यूजी इंडिया में घुसने लगे थे। जगह जगह पे इंडिया को रिफ्यूजी कैंप तक बनाने पड़ रहे थे। और बहुत ही कम टाइम के अंदर ये जो रिफ्यूजी का नंबर था, ये 90 लाख से भी ऊपर पहुंच गया था। अब देखिए, सुनने में तो ये बहुत छोटी सी चीज लग रही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा था। पैसे का बहुत नुकसान हो रहा था। $700 मिलियन का बर्डन इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आ गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का 4% इसी चीज को संभालने में लग जा। Wow, 4% of the budget was pushed towards helping Bangladesh achieve independence. I mean, that's a pretty big spot, 4% on the refugee care, I should say. That's a massive amount. जा रहा था और बॉर्डर ये बहुत लंबा था, तो इसको रोकना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन रिफ्यूजी के जो नंबर थे वो बहुत तेजी से डे बाय डे बढ़ रहे थे, और इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि इंडिया की डेमोग्राफी तक चेंज होने का डर खड़ा हो गया था। मतलब कि इंडियन रीजन में आबादी बदलने तक का डर खड़ा हो गया था। अब इससे निपटने के लिए इंडिया ने बहुत सारे तरीके अपनाए, मल्टीपल जगह बात की, यूएन तक में गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो नहीं पाया। और जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो अप्रैल 1971 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के चीफ को बुला के तुरंत ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन लेने के लिए बोला। अब ये चीज जब तीनों चीफ्स के सामने रखी गई तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें इस वॉर को जीतने के लिए टाइम चाहिए होगा, कि अगर ये वॉर हम अप्रैल 1971 की जगह दिसंबर 1971 में करेंगे तो श्योर शॉर्ट विक्ट्री होगी और डैमेज भी कम होगा। और फिर ये सारी चीजें डिस्कस होने के बाद इंदिरा गांधी जी प्रिपरेशन के लिए टाइम दे देती। अब जब ये प्रिपरेशन का टाइम मिला तो इंडियन फोर्सेस का प्लान ये था कि ये जो 6-7 महीने मिले हैं प्रिपरेशन के लिए, इसमें पाकिस्तान को इतना वीक कर दिया जाए कि How India won 1971 war on water, sank Pakistanis Ghazi hunting for INS Vikrant. The Indian Navy launched a multifaceted campaign that included naval interdiction, air defense, ground support, and logistics missions. The primary objective was to disrupt Pakistan's supply line and cripple its naval power. Operations such as Operation Trident and Operation Python were key components of the strategy. दिसंबर में जब वॉर हो तो एकदम आसानी से विक्ट्री हो। तो अगर आप यहाँ मैप पे देखोगे तो पाकिस्तान की मिलिट्री I mean, even yeah, God, the British, man, like it's ridiculous. This was even separated into both of these being Pakistan, right? Like में जब वॉर हो तो एकदम आसानी से विक्ट्री हो। तो अगर आप the British, when it comes to when they leave territory and dividing it up, they're the absolute worst at it, aren't they? They always leave conflict and strife, no matter what they do. The majority of the wars after World War II were mostly in part caused by the British, cutting up territory that they once ruled over
And then those people would fight because, the lines and the borders, just naturally, cause conflict to occur. It's ridiculous, man. It's ridiculous. I mean, maybe the fate they're currently under right now is karma as a result from, all the hardships that they've caused. Also, I like, is it wrong for me to say that maybe they should have maybe at the time India probably should just have turned East Pakistan into part of India as a whole when they freed them? Would that have been better? Would that have been a lot more convenient? Maybe. I don't know. आप यहां मैप पे देखोगे तो पाकिस्तान की मिलिट्री जो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान पहुंच रही थी, उसके पहुंचने के दो ही तरीके थे। एक एयर रूट था, दूसरा ये सी रूट था। तो 1 अप्रैल 1971 को तो इंडिया ने अपना एयर स्पेस तो ऑलरेडी बंद ही कर दिया था। अब दूसरा रास्ता बचा था सी रूट। पाकिस्तान मिलिट्री ईस्ट पाकिस्तान में सारे जो मिलिट्री सप्लाई वगैरह थे वो इसी रूट से भिजवा रही थी। तो उस टाइम के इंडियन नेवी के हेड SM नंदा जी जो थे, वो ये चाहते थे कि कैसे भी करके इस सी रूट When Karachi port burned for days in 1971, courtesy Indian Navy, the Indian Navy under the command of Admiral SM Nanda emerged as a pivotal force in the liberation of East Pakistan. India's maritime force operated in two theaters, Eastern and Western, and ensured a naval blockade to break the link between East and West Pakistan. रूट को भी बंद कर दिया जाए ताकि यहां से भी अगर हथियार वगैरह नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान की मिलिट्री की सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी, तो ईस्ट पाकिस्तान ऐसे ही चारों तरफ से आइसोलेट हो जाएगा। अब ये प्लान तो अच्छा था, लेकिन इंडिया खुद डायरेक्टली इस चीज को नहीं रोक सकता था, ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाता। तो इसके लिए अगले मंथ यानी कि मई 1971 को एक प्लान बनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में एक प्लासी नाम से जगह है जहां एक सीक्रेट लोकेशन सेलेक्ट की जाती है और इस लोकेशन का कोड नेम था C2P। लेफ्टिनेंट कपिल और लेफ्टिनेंट दास इस सीक्रेट लोकेशन को मैनेज कर रहे थे और इस लोकेशन पे सारा कुछ सेटअप करने के बाद ईस्ट पाकिस्तान में जो मुक्ति बाहिनी के लोग पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, उनको इस C2P सीक्रेट कैंप में बुला के ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इन मुक्ति बाहिनी के कमांडो को मैग्नेटिक लिम्पेड माइंस लगा के शिप्स को उड़ाना सिखाया गया। Wait, what? इसमें इन Go back. Although India had already been supporting the Bangladesh liberation movement for months, including providing training, arms, and assistance to the guerrillas, war between the two countries officially broke out. So I did not know this. I didn't know that they were training the guerrilla militants inside of East Pakistan to better fight against the Pakistani army. Wow. When Pakistan launched Operation, a series of airstrikes targeting air bases northwestern India, Islamabad, Pakistan's capital, maintained that the airstrikes were a response to India's aggressive support for the guerrillas. Wow. I mean, that does put a lot of different things onto different perspectives, So it's confirmed. I mean, it's 100% they were training the guerrillas. Interesting. Very interesting. मुक्ति बाहिनी के कमांडो को मैग्नेटिक लिम्पेड माइंस लगा के शिप्स को उड़ाना सिखाया गया। नाइट में नेविगेशन कैसे करना, ये सारी चीजें ट्रेनिंग में सिखाई गई। प्लान सिंपल था कि ये लोग खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की बजाय मुक्ति बाहिनी के जो कमांडो थे इनको ट्रेन करेंगे और ये कमांडो Although India had already been supporting Bangladesh, I read this. साथ में अंडर वाटर स्विम करके जाएंगे और पाकिस्तान ये जो सी रूट से ईस्ट पाकिस्तान पहुंच रहा था, इन शिप्स के पास जाएंगे, उनके नीचे मैग्नेटिक लिम्पेड माइंस लगा के वापस आ जाएंगे और जब एक के बाद एक पाकिस्तानी शिप्स उड़ने लगेंगे तो अपने आप ये जो रूट है पाकिस्तान के लिए ब्लॉक होने लगेगा, जिससे पाकिस्तान की जो मिलिट्री वेपन्स वगैरह भेजने की जो सप्लाई लाइन है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो डिसरप्ट हो जाएगी। तो अब ये सारी ट्रेनिंग वगैरह पूरी करने के बाद एक सीक्रेट कोड रखा जाता है कि इंडियन रेडियो पे एक स्पेसिफिक टाइम पे दो प्री डिसाइडेड गाने चलेंगे और जैसे ही वो चलेंगे ऑपरेशन एक्स इसका नाम रखा गया। I mean, that is like straight out of like a spy movie. In a stunning revelation from South Asia, India's Navy reportedly executed a covert mission dubbed Operation X, crippling East Pakistan's naval capabilities. Operation X. Even the name is cool. Operation X. I mean, it's such a cool name. As per plan, 15th of August 1971 की रात को
रेडियो पे एग्जैक्ट गाने बजते हैं और जैसे ही रेडियो पे ये गाने बज के सिग्नल मिलता है, मुक्ति बाहिनी के कमांडो चितगोंग, मोंगला, चांदपुर इन सारे इलाकों से निकल के अंडर वाटर स्विम करके पाकिस्तान के शिप्स जो उस रूट पे चल रहे थे उनके पास पहुंचते हैं, मैग्नेटिक लिम्पिट माइंस लगा देते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे ट्रिगर होकर ब्लास्ट करना था, जिसको इसका नाम ऑपरेशन एक्स रखा गया था। तो ये ऑपरेशन एक्स स्टार्ट जैसे ही होता है तो एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं और 16 अगस्त 1971 को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। एमवी How many? Okay, so how many ships were destroyed? Explosion sank these two. Okay, so it sank the A1 Abyss, the MV Hormuz, and the Orient Barge number 6, sinking 19,000 tons of arms and ammunition. अल अब्बास और एमवी हार्मोज ये सब उड़ जाते हैं। करीब 19,000 टन आर्म्स और एम्यूनिशन का नुकसान। I didn't know about this either. Like these are like specific operations. I maybe I need to look into this a little bit more. Interesting, very interesting. 19,000 There's टन so much that I was unaware of. जगह पे चेंज भी मिल सकता है। जो सबसे ज्यादा लिखा गया मैंने वो यूज किया। अब ये जो ऑपरेशन एक्स स्टार्ट हुआ था, जो बैक टू बैक पाकिस्तान की शिप्स पे धमाके हो रहे थे और ये पता भी नहीं चल रहा था कि कैसे हो रहे हैं धमाके। शिप्स के अंदर शिप्स जा रही हैं और धमाके हो जा रहे हैं। तो पाकिस्तान बहुत हैरान हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान की सारी मिलिट्री सप्लाई लाइन जो थी, जो ईस्ट पाकिस्तान में जा रही थी, वो डिसरप्ट होती जा रही थी। 100 से ज्यादा वेसल्स में ब्लास्ट हो चुके थे, पाकिस्तान में जा रही थी। Wait. In the 9 months of Liberation War, the valiant squad of naval commandos used mines to sink more than 100 Pakistani and other foreign ships near Bangladesh's coastal areas. So wait, the people died as well? Like, that's wild. And over 100 ships? Wow. थी वो डिसरप्ट होती जा रही थी। 100 से ज्यादा वेसल्स में ब्लास्ट हो चुके थे। हाल ये हो गया था कि पाकिस्तान अपनी शिप्स इस रूट में भेजने में भी डरने लगा था। ये सारी चीज जो मैं बता रहा हूं, ये कैप्टन MNR समंत जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी अपनी बुक में मेंशन कर रखा। अब देखिए, इसके कुछ टाइम बाद ऑपरेशन एक्स की वजह से ये जो ब्लास्ट हो रहे थे पाकिस्तानी शिप्स पे, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक और प्लान तरीके से हो रहे थे। और जिस प्लान तरीके से ये हो रहे थे अटैक, पाकिस्तान को समझ में आने लगा था कि ये मुक्ति बाहिनी का कोई गुरिल्ला अटैक नहीं है, बल्कि इंडिया बैक्ड कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन है। यूएसए भी पाकिस्तान के साथ था, वो भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान very unfortunate. यूएसए भी पाकिस्तान Then U.S. President Richard Nixon and his foreign minister Henry Kissinger did not view India as an ally. They had an inherent emotional dislike towards New Delhi, which was later proven when the U.S. sent the USS Enterprise into Indian Ocean to threaten the Indian Navy in the east and support the authoritarian Pakistani regime. Very unfortunate that the U.S. decided to do that. Super unfortunate. It's a shame that the American government allied with Pakistan, and unfortunately, I mean, they're still buddy with Pakistan, and it's weird. It's a weird thing because now, like, Pakistan's all buddy in the UN as well with everybody. I mean, they're like leading the terrorist task force, which is just ironic beyond belief because all the terrorist cells that spring out of Pakistan, you know, it's just surprising that, you know, the normal common people can see the issue with this, but it feels like these larger government entities don't. Or maybe they do, and they're just trying to utilize and, you know, scheme and, take something from, you know, the Pakistani area that they have. Like, I know Trump wants the rare earth metals from Pakistan. He also wants it, you know, do dealings with them for like crypto nonsense, and it's you know what? I was just thinking, you know, all those IMF loans that Pakistan keeps receiving, what if all that money's being like funneled into like crypto nonsense, and that is being funneled back into, you know, Donald Trump's pocket in some way? I don't know. Just a thought I had just now. के साथ था, वो भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान मिलिट्री जो ईस्ट पाकिस्तान में कर रही है उसके बीच में इंडिया आके खड़ा हो जाए। तो जब ये सब हो रहा था तो यूएसए भी अपने एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम से इंडिया की भी एक्टिविटी ट्रैक कर रहा था।
22 दिसंबर 1971 को CIA के ऑफिस ऑफ नेशनल एस्टिमेट्स ने एक सीक्रेट मेमोरेंडम बनाया था। अभी तो ये डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाइड हो गया है। फॉरेन रिलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट 144 के नाम से मिल जाएगा। ये उसकी कॉपी है। तो उस टाइम पे भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूएसए ने साफ लिखा था मुक्ति वानी को इंडिया। There's some truth in both sets' claims, but Indian involvement with the guerrilla fighters is clearly greater than New Delhi publicly admits. Well, I mean, it was true that they were training them, right? So, I mean, somehow the CIA knew that, which is weird. Okay, so what does this say up here? Mass uprising inside East Bengal itself, and that is unable to monitor, much less stop the aid given by sympathizers in India. Reports and direct observation by such outsiders as Western newsmen indicate that the Indian military and paramilitary services are arming, equipping, and training, as well as providing sanctuary to East Bengalis in considerable numbers. I mean, this ended up being true, right? So even at the time, the U.S. had clearly written document that India was supporting them. सपोर्ट कर रहा है। अब ये जो पाकिस्तान के ऊपर ब्लास्ट हो रहे थे और इंडिया का नाम जब इसमें सामने आ रहा था, तो पाकिस्तान ने एकदम ऑफेंसिव मोड ऑन कर दिया इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान ने अपने कराची और आसपास के जो एयरबेस थे उन पर फाइटर्स और नेवल यूनिट्स को फॉरवर्ड डिप्लॉय कर दिया। अब पाकिस्तान ने अपने ऑफेंसिव मोड में जब फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट वगैरह स्टार्ट किया, तो ये सारी इंटेलिजेंस इंडिया के नेवी हेडक्वार्टर में भी आने लगी कि ऑपरेशन एक्स में जो नुकसान हो रहा है इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ भी कुछ प्लान कर सकता है। तो इंडियन नेवी अपने शिप्स को लेकर अलर्ट हो जाती है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पे सारी खड़ी शिप्स पे एयर स्ट्राइक कर दी थी। कहीं पाकिस्तान भी ऑपरेशन एक्स का बदला लेने के लिए ऐसा ही कुछ ना सोच रहा हो। और उस टाइम पे इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर था आईएनएस विक्रांत। वो मुंबई के बैलेट पियर पे खड़ा था। अब देखिए, आईएनएस विक्रांत जो था ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नेवल एसेट था। इंडियन ओशियन में ये एक सिटी के साइज का चलते फिरते एयरबेस की तरह था। इसके ऊपर 20 से 25 फाइटर जेट से भी ज्यादा ऑपरेट कर सकते थे। वॉर के अंदर अकेले आईएनएस विक्रांत पूरी बाजी पलटने का दम रखता था, इसलिए इसको सेफ रखना बहुत जरूरी था। लेकिन सेम टाइम पे एक दिक्कत और थी इसमें कि आईएनएस विक्रांत में कुछ रिपेयर का काम भी बचा था। इसके एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए कैटापुल्ट लॉन्चर जो था उसमें दिक्कत थी, और इसके A1 बॉयलर के मल्टीपल वाटर ड्रम भी रिपेयर होने थे, और उनके स्पेयर पार्ट वगैरह जो थे वो ब्रिटेन से मंगवाने पड़ते थे और 3-4 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता। तो आईएनएस विक्रांत को कहीं सेफ लोकेशन पे छुपाना है या वॉर के लिए रेडी करना है, इन सारी चीजों को लेकर मल्टीपल डिस्कशन होने लगे कि इसको सेफ रखा जाए या फिर इसको वॉर में उतारा जाए। और इंडियन नेवी के अंदर सबका यही कहना था कि आईएनएस विक्रांत का रिपेयर होना भी पेंडिंग है, तो इसको आगे जो वॉर होनी है उसमें इन्वॉल्व करना सही डिसीजन नहीं होगा। लेकिन इंडियन नेवी के हेड एसएम नंदा और वाइस एडमिरल हीरा नंदानी सबके अगेंस्ट जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारा सबसे पावरफुल वेपन है, इसको जरूर वॉर में उतारना चाहिए। और रही बात रिपेयर की, तो इसको हम वॉर रेडी बना देंगे। और फिर मल्टीपल डिस्कशन के बाद इस चीज को लेकर अप्रूवल मिल जाता है। और जैसे अप्रूवल मिलता है तो आईएनएस विक्रांत जो मुंबई के बैलेट पियर पे खड़ा था उसको मुंबई के कोबाल पोर्ट पे शिफ्ट करके रिपेयर का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। और जब ये रिपेयर हो जाता है उसके बाद आईएनएस विक्रांत को पहले कोबाल पोर्ट से कोचिन, फिर कोचिन से मद्रास बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट कर दिया जाता है। और यहां पहुंचने के बाद आईएनएस विक्रांत एक सेफ रेंज में आ जाता है, जिसके बाद ये मद्रास, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर के बीच जो 18,000 माइल्स का जो एरिया था वहां पे इसको सर्वेलांस का काम दे दिया जाता है। अब आईएनएस विक्रांत जब ईस्ट कोस्ट पे पहुंचा तो इस चीज का इंटेल पाकिस्तान की नेवल इंटेलिजेंस को भी मिल जाता है। तो इस चीज को सुन के पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि एयर स्पेस ऑलरेडी बंद था। पूरा सी रूट पे पाकिस्तान के जो शिप थे उन पे धमाके हो रहे थे ऑपरेशन एक्स की वजह से। ऊपर से आईएनएस विक्रांत जो इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, उसको इंडिया ने ईस्ट कोस्ट में शिफ्ट कर दिया। तो पाकिस्तान का डर था कि अगर आईएनएस विक्रांत का यूज करके ईस्ट कोस्ट पे पूरा नेवल ब्लॉकेट लगा दिया तो ईस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तान की मिलिट्री का पूरा कंट्रोल हट जाएगा, और ये जो सारी रीएनफोर्समेंट, वेपन सप्लाई, which is crazy because at the time, I mean, Pakistan had basically given up on the majority of the people in East Pakistan, right? They had a lower standard of living. They, everything was basically just not quite abandoned, but to the point where they just were just being, mistreated, right? And I guess Pakistan only saw fit in it to be like a military standpoint. ये सारी चीजें जो ईस्ट पाकिस्तान में हो रही हैं इस रूट से, ये भी बंद हो जाएंगी। और ईस्ट पाकिस्तान जहां ऑलरेडी मुक्ति बानी के कमांडो इतनी ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं और वहां पे जब ये सारी सप्लाईज पहुंच नहीं पाएंगी तो ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। और
और ये वो टाइम था कि यहां से पाकिस्तान ने फैसला कर लिया था आईएनएस विक्रांत का अगर टाइम रहते कुछ नहीं किया तो ईस्ट पाकिस्तान इनके हाथ से जाना तय है। और ये जो डर था पाकिस्तान का आईएनएस विक्रांत को लेके, ये आगे चल के सही भी होता है। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब यहां से पाकिस्तान सारी चीजें छोड़ के आईएनएस विक्रांत को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना स्टार्ट करता है। अब देखिए, पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर तो था नहीं, लेकिन इसके पास 4 सबमरीन थी, जिसमें से 3 सबमरीन And they were all these submarines were like hand-me-downs from the US, right? Like they were old submarines from like the 50s. जो थी हैंगूर, मैंग्रो और शुशुक, ये तो शॉर्ट रेंज वाली सबमरीन थी पाकिस्तान के पास। तो ये आईएनएस विक्रांत के पास पहुंच के वहां जाके डैमेज करना इतना पॉसिबल नहीं था इनके लिए। लेकिन जो इनकी चौथी सबमरीन थी वो एक लौती लॉन्ग रेंज सबमरीन, Long range attack. The Ghazi leased. Oh, it was leased from the US. It wasn't even like the US gave it to them. They leased it. It's all about money. Crazy. Was Pakistan's only long range attack submarine and was tasked with a critical mission. It was tasked to hunt and destroy India's aircraft carrier, INS Vikrant, which was based in थी there. पाकिस्तान के पास, जो आईएनएस विक्रांत के पास पहुंच के उस पर हमला करके उसको रास्ते से हटा। It's crazy he's got it. Look at this. It's crazy he has to censor words like attack. YouTube has gotten so extreme with their censorship that he's got to censor words like attack. That's ridiculous. So YouTube needs to change, man. Like they need to YouTube. I'm on YouTube. Ironic. I put all my content on YouTube. I run 4 YouTube channels, but YouTube needs to change. हटा सकती थी। और इस सबमरीन का नाम था पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी को पानी के नीचे डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और ये जो पीएनएस गाजी है, ये पहले यूएसए के पास थी, तब इसका नाम USA submarine to be transferred to Pakistan Navy from in 1964. So at that point, during the attack, they had been operating it for 7 years. All right. The conventionally powered Navy submarine USS Diablo. Man, why did they change their name to Ghazi? Diablo is just so much cooler. PNS Ghazi, come on. USS Diablo is such a better name. It was transferred from the United States to the government of Pakistan in a ceremony held at New London, Connecticut. I wonder who got all that money. Who got all this money? यूएसएस Who got that money? Who got rich off of that? में इंडिया के पास आईएनएस विक्रांत आया था, तो इसको काउंटर करने के लिए ईयर 1963 में यूएसए ने So to counter it in 1963, US gave submarine to Pakistan. Wait. Go back. I missed something here. This right here. HMS Hercules was commissioned into the Indian Navy on 4th of March 1961, where she was redesignated as INS Vikrant. The HMS Hercules? Wait. के पास थी, तब इसका नाम यूएसएस डियाब्लो था। लेकिन जब ईयर 1961 में इंडिया के पास आईएनएस विक्रांत आया था, तो इसको काउंटर करने के लिए ईयर 1963 में यूएसए ने सिक्योरिटी The Trench class diesel electric submarine, i.e. USS Diablo, was previously under the command of the USA, which was leased to Pakistan in 1963 under the Security Assistance Program. Security Assistance Program. Okay. असिस्टेंस प्रोग्राम एसएपी के अंडर इसको पाकिस्तान को लीज पे दे दिया था, और फिर पाकिस्तान ने इसका नाम बदल के पीएनएस गाजी S-130 कर दिया था। तो पाकिस्तान के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन पीएनएस गाजी था आईएनएस विक्रांत को रास्ते से हटाने के लिए। I want to look up some more about this HMS Hercules. So the INS Vikrant was a Majestic class light aircraft carrier that served as the flagship of the Indian Navy up until 1997. From 61 to 97. Wow, it had a long life, didn't it? Marking India's entry into the carrier options, originally down as HMS Hercules for the Royal Navy in 1943 during World War II. I thought construction was suspended in 1946 at about 75% completion. India purchased the incomplete hull in 1957, had it finished and modernized in Belfast, and commissioned it on the 4th of March 1961 as the nation's first aircraft carrier.
Oh, that's cool. Okay. So it was always India's aircraft carrier. Like it wasn't like it was they purchased it incomplete, right? And then they finished it themselves. Okay, good. I was very confused. This HMS Hercules was very confusing because I mean, the HMS Hercules is like, I don't know. It's like a ship from like the 1800s. I'm positive. I thought I was like, what is going on here? Throughout the 36 years of service, Vikrant displaced approximately 16,000 tons of standard and carried up to 23 fixed wing aircraft and helicopters. Wow, very cool, very very cool. All right, back to the video. तो सितंबर 1971 आते आते पाकिस्तान की लीडरशिप ये फैसला ले चुकी थी कि अब पीएनएस गाजी को बे ऑफ बंगाल भेज के आईएनएस विक्रांत को गिराना होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये जो पीएनएस गाजी था इसकी भी हालत बहुत खराब थी, पुराना हो गया था ये, और इसके मार्क 14 टॉर्पीडोज में एक टेक्निकल इशू चल रहा था। और करीब एक वीक पहले जब पीएनएस गाजी को एक शॉर्ट पेट्रोलिंग के लिए अरेबियन सी में भेजा गया तो मैकेनिकल इशू की वजह से बीच रास्ते से वापस बुलाना पड़ गया था। तो पीएनएस गाजी में ये जो सारे इशू चल रहे थे इसकी वजह से पाकिस्तान की नेवी पीएनएस गाजी को बे ऑफ बंगाल में मिशन के लिए भेजने के लिए मना कर रही थी। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की लीडरशिप मानती नहीं है, वो अपना फैसला बना चुकी थी और प्रिपरेशन स्टार्ट करा देती है। अब पाकिस्तान को ये तो पता था कि आईएनएस विक्रांत बे ऑफ बंगाल में था, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। और इसको पता करने के लिए क्या किया इन्होंने, एक वेस्टर्न कंट्री थी उसके एयरक्राफ्ट को बहाने से मद्रास के पास Details of the harbor had been carefully studied, as well as photographs taken in the air of the Vikrant in Chennai harbor by the aircraft of the Western country working on behalf of Pakistan. Which Western company was this? At sea, Western and Eastern Seaboard. I mean, was it the U.S.? Is Western country in reference to the U.S., or were they also getting help from some other like a European nation? Like who's operating भेजा this? गया और फिर मद्रास के पास पहुंच के एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम का बहाना बना के इमरजेंसी लैंडिंग की रिक्वेस्ट। Emergency landing in India due to a technical problem. Oh my god. Was it also a coincidence that an aircraft of the same Western country that was supporting Pakistan was sent to Chennai where it inexplicably developed mechanical problems that necessitated test flights around Chennai Harbor? Wow. Oh man. Okay, so they were doing some spy work there as well. Clearly they were. Man. की इंडिया से। अब जब उस वेस्टर्न कंट्री के एयरक्राफ्ट ने इस Why does तरीके he की keep saying Western country? I mean, it's got to be the U.S., right? It's got to be a U.S. plane. की रिक्वेस्ट करी तो इंडिया मना नहीं कर सकता था, उसको अलाउ करना पड़ा। और फिर इस एयरक्राफ्ट ने मद्रास पोर्ट पे उतरने के बाद आसपास के एरिया में मल्टीपल टेस्ट ड्राइव करी सही करने के बहाने से, और उसी बीच में इसको आईएनएस विक्रांत दिखा, उसकी पिक्चर्स ली इन्होंने, कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिए, और फिर सेम वीक में ये जो आईएनएस विक्रांत की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स थी इसको पाकिस्तान नेवल वॉरफेयर के डायरेक्टर कैप्टन अब्दुल वाहिल भूमल को भेज दी। तो इस तरीके से अब पाकिस्तान के पास आईएनएस विक्रांत है कहां पे उसकी डिटेल्स भी आ गई थी। और ये जो वेस्टर्न कंट्री थी, कौन सी वेस्टर्न कंट्री का ये एयरक्राफ्ट था इसका पता नहीं चल पाया। जहां Western country. It's always just Western country. I'm going to just assume it was the US. लिखा गया वहां वेस्टर्न कंट्री मेंशन है। इसके बाद डेट आती है 8th of November 1971 और इस दिन को कैप्टन जफर मोहम्मद खान जो कि 1965 की वॉर में पीएनएस गाजी का टॉर्पीडो ऑफिसर भी था, इस मिशन के लिए इसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, पीएनएस गाजी का कमांडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है, और फिर बेसिक डिटेल्स जो थी आईएनएस विक्रांत की वो इसको दे दी जाती हैं। और फिर एक वीक बाद 14th of November 1971 की डेट फिक्स कर दी जाती है कि इस दिन पीएनएस गाजी अपने मिशन पे जाएगा। और फिर सारी प्रिपरेशन के बाद डेट आती है 14th of November 1971। इस दिन पीएनएस गाजी को मिशन के लिए निकलना था और पीएनएस गाजी में सीईओ कैप्टन जफर मोहम्मद खान के साथ 93 मेंबर थे, जिसमें से 11 ऑफिसर्स थे। ये अपना निकलने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जितने भी ये लोग थे इनमें से किसी को भी ये नहीं बताया गया था कि एग्जैक्टली क्या करना है। मिशन की जितनी भी डिटेल्स थी उसके लिए नेवल हेडक्वार्टर ने इनको सील्ड ऑर्डर Hopes have no frontiers. To read at high sea as expected when sealed orders were opened. They read, "Sink INS Vikrant. It was to make its last report between November 26th to 26th to 28th, 1971. But by then, Ghazi had lost all communication. After traversing more than 3,000 kilometers, Ghazi reached Vish." Patnam in the Bay of Bengal.
I'm listen, I'm very terrible when it comes to like speaking. I even mess up English, which is my technically it's like my second language, but we're not going to give it. I can't speak Spanish anymore, so it's my main language. Um, it's my issues. I have like dyslexia. I have I have trouble forming words. I have trouble reading sometimes. I do apologize. हैंड ओवर कर दिए थे और एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स दे दिए थे जिस जगह पे जाके इन सील्ड ऑर्डर्स को खोलना था और इसके साथ ये भी कहा था कि किसी वजह से इन कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचने में डिले हो जाए या कोई कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए तो इस सील्ड ऑर्डर को उस केस में खोल लेना, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है और इस ऑर्डर में एग्जैक्टली लिखा क्या था उसकी कॉपी भी आपको आगे दिखाऊंगा अभी। तो अभी तक पीएनएस गाजी में जितने भी लोग थे उनको बस इतना पता था कि आईएनएस विक्रांत के आसपास पेट्रोलिंग करनी है, डिटेल्स इकट्ठी करनी है, इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता थी। तो इसके बाद पाकिस्तान का नेशनल एंथम वगैरह बजता है और यहां से पीएनएस गाजी निकलता है और निकलते ही राइट टर्न लेता है और 84 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ जाने के लिए इंडिया का जो बॉर्डर था उससे 400 नॉटिकल माइल की जो डिस्टेंस थी वो मेंटेन करता है और 20 नॉट्स पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट कर देता है ताकि इंडियन सर्वेलांस इसको डिटेक्ट ना कर पाए। पीएनएस गाजी में जितने लोग बैठे थे इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये एग्जैक्ट रूट था और 2 दिन बाद 16 नवंबर 1971 को ये यहां तक पहुंच जाते हैं। ये लोग डे बाय डे आईएनएस विक्रांत की लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब जब गाजी इस रूट पे इधर निकलता है तो इंडियन नेवी ऑलरेडी कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इधर ढाका के जितने कम्युनिकेशन सिग्नल थे That's उनको ट्रैक कर crazy. रहा था। India was already India was already just tracking it all, man. Stories of grit and glory from the Indo-Pak War. Headquarters Eastern Command India had in the meantime set up a series of wireless interception stations to lock on to radio transmissions between Karachi, Lahore, Rawalpindi, and Dhaka. General Jacob believed that being warned was being forearmed. These wireless intercepting stations had been set up in September 1971. Wow. So just but like what 2 months prior? और उस टाइम पे इंडियन नेवी के पास हाईटेक कंप्यूटर्स नहीं थे लेकिन एक स्मार्ट रेडियो डायरेक्शन फाइंडर था। That's so cool. ये पाकिस्तान के जो सीक्रेट मैसेजेस थे उनको एग्जैक्टली इनक्रिप्ट नहीं कर पाता था लेकिन ये किस डायरेक्शन से सिग्नल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं वो बता देता था। पाकिस्तान के नेवी हेडक्वार्टर के अंदर बहुत छोटे छोटे एनक्रिप्टेड मैसेज भेज के कम्युनिकेट कर रहा था कि अब यहाँ पे पहुंच गया है और अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा था वो सारी डिटेल्स भेज रहा था। अब जब ये लोग बीच बीच में शॉर्ट मैसेज भेज के बात कर रहे थे तो इंडिया का ये जो रेडियो डायरेक्शन फाइंडर था ये एक पैटर्न ट्रैक करता है कि साउथ ईस्ट सी की एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एक कोई सबमरीन या वेसल टाइप की चीज है जो धीरे धीरे आईएनएस विक्रांत की लोकेशन के पास पहुंच रही है और वो पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में हर थोड़ी देर पे शॉर्ट सिग्नल भेज रही है। अब ये चीज जब सीओ धर्मदेव दत्ता, इनको ट्रिपल डी भी कहते थे, इनको पता चलती है, ये इस चीज को सीरियस लेते हैं और इसकी और डिटेल्स निकालना स्टार्ट करते हैं। तो पता चलता है कि लास्ट कुछ दिनों से वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में ये जो सीक्रेट मैसेजेस होते हैं इनके वॉल्यूम्स अचानक से बहुत It's not so secret if you're being caught. Key episode in Battles of India, 1971, War with Pakistan. A sudden increase in the number of messaging on that day meant that there was something big in the offing. Offing? What does the offing mean? तेजी से बढ़ गए थे और इसी बीच में इन्होंने एक वायरलेस एनक्रिप्टेड British कम्युनिकेशन word, I don't know. उसमें पता चला था कि ये ईस्ट पाकिस्तान के चिटगोंग से एक स्पेशल ग्रेड लुब्रिकेंट ऑयल की रिक्वेस्ट कर रहे थे और ये जो ऑयल था The oil was used only in minesweepers and submarines. Oh, so they deduced, hey, they're getting a lot of this submarine oil. That must mean there's a submarine on the way. The development of the Ghazi to the Bay of Bengal was revealed to the Indian Navy when a signal addressed to the naval authorities was intercepted requesting information on special grade lubricants. Oh my God, it's a ditty party up in here. That was used only by submarines and minesweepers, as minesweepers and the Daphne class submarine did not have the range to operate in Bay of Bengal. It was assumed that the submarine Ghazi was stalking the Vikrants. Wow. They got outed because they were talking about lube. Wow. माइन स्वीपर्स या फिर सबमरीन्स में यूज होता था और इसके साथ साथ साउथ ईस्ट में भी एक सबमरीन या वेसल टाइप की चीज मल्टीपल शॉर्ट मैसेजेस भेजते हुए पाकिस्तान में धीरे धीरे आईएनएस विक्रांत की लोकेशन की तरफ भी पहुंच रही है। It is like a spy thriller, man. It's crazy. देखने के बाद ये पता चलता है कि पाकिस्तान real life can be so fascinating, more fascinating than even the movies sometimes. Like it can be even more extraordinary.
पाकिस्तान के पास एक ही लॉन्ग रेंज सबमरीन थी जो इतना लंबा रूट कवर कर सकती है, और वो थी गाजी। और इंडिया के पास पीएनएस गाजी की फ्रीक्वेंसी, हैबिट्स, पावर लेवल, एंटीना पैटर्न, इनकी डिटेल्स ऑलरेडी थी, उसको भी मैच किया गया तो पीएनएस गाजी से मैच हुई वो। तो यहां से सीईओ धर्मेंद्र देव दत्ता ट्रिपल डी इनको कंफर्म हो गया था कि सबमरीन पीएनएस गाजी है जो आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए आगे बढ़ रही है। और सेम टाइम पे इंडिया के पास एक और इंटेल आता है कि पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे एक नया सर्वेलांस सिस्टम लग रहा है। अब वॉर के टाइम पे ऐसे कोई नया You know, I was just thinking, it's a bit crass of me to think, but like the way he was saying PNS is he was saying it very quickly and it sounded like penis. and Dhaka was asking for lube for the penis. Sorry. Very crass of me. I understand. But like he was just saying PNS so fast. I have the mind of like a teenager sometimes. I apologize. पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे एक नया सर्वेलांस सिस्टम लग रहा है। अब वॉर के टाइम पे ऐसे कोई नया इक्विपमेंट आ जाता है किसी दूसरे देश के पास तो वो गेम चेंजर बन जाता है, इसलिए इसकी डिटेल्स भी पता करनी बहुत जरूरी थी। तो हुआ क्या था कि सेम रूट पे जो इंडिया और पाकिस्तान का था, यहाँ पे इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट ने एक इंडियन डॉक्टर जिसका नाम कवासजी था, उसको An Indian doctor was caught bringing in expensive undeclared goods on his ship. वो स्मगलिंग करते हुए पकड़ा था। तो आरएनएडब्ल्यू ने इसको जेल से उठा के इससे डील वगैरह करी और टास्क दिया कि सेम रूट पे जैसे पहले पाकिस्तान जाता था शिप लेके, वैसे ही दोबारा जाना है, बस जाते टाइम हमारे 2 बंदे शिप के अंदर ले जाने हैं। और ये दोनों जो They recruited a criminal. Doctor realized that the choice he was being offered was no choice at all. What do you need? He asked. He will be taking 2 men with you on your next trip to Pakistan. The trip will have to start with the next 2 days. I'm sure you'll find a good reason. This is like straight out of a spy thriller. Yeah, we got it. The doctor's a criminal. We're going to use him to go on his criminal route, and we're going to send our agents with him. What? लेके वैसे ही दोबारा जाना है, बस जाते टाइम हमारे 2 बंदे शिप के अंदर ले जाने हैं। और ये दोनों जो थे ये रॉ के एजेंट थे जिनका कोड नेम था Rod and Moriarty. Wow, they even got cool code names and everything. Their real names were Raoul and Murty. Murty? Raoul was Nair's naval assistant and Murty was the RAW specialist from the photography department. The mission was undertaken in October 1971, well before the conflict had officially begun. और मोरियार्टी। तो एज पर प्लान कॉजी जो था वो सेम रूट पे इन दोनों एजेंट्स को लेके पाकिस्तान के पोर्ट पे जाना स्टार्ट करता है। और फिर वहां पहुंचने के बाद ये जो दोनों एजेंट थे वहां पे फोटोग्राफ्स वगैरह लेना स्टार्ट करते हैं और जो शिप थे उनकी काउंटिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। और फोटोग्राफ जब ये ले रहे थे तो इसी टाइम पे इनकी नजर एक स्ट्रक्चर पे पड़ती है जिसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस बैटरी लगी हुई थी। अब देखिए ये चीज थोड़ी सी अनयूजुअल थी क्योंकि ऐसी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और रेडार सिस्टम पीस टाइम पे नहीं दिखते हैं, इमरजेंसी या फिर वॉर के टाइम पे ही दिखती हैं। तो ये जो इंटेल They saw they were सारी prepping इंटेल for इंडियन war. नेवी के पास पहुंचा दी जाती है। तो ये सारी चीजों को जब जोड़ा गया तो यहाँ से समझ में आ गया कि पाकिस्तान मन बना चुका है वॉर का। और ये जो पीएनएस गाजी बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, जैसे ही आईएनएस विक्रांत को गिराएगा उसके बाद पाकिस्तान वॉर स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से इंडिया भी अपनी प्रिपरेशन तेज कर देता है। और पीएनएस गाजी जो बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ रहा था, एग्जैक्टली वो है कहां, उसकी लोकेशन पता करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था इंडिया के लिए। और पीएनएस गाजी जो था वो 16 नवंबर 1971 को ये जो ओखला पोर्ट है इसको क्रॉस कर चुका था और यहीं से अपने कोऑर्डिनेट्स वगैरह भेज के पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म भी किया था इसने। और फिर इसके बाद कोलंबो की तरफ जाना स्टार्ट करता है। नेवल एयरफील्ड जो थी गोवा की वहां पे पहुंचा, फिर कर्नाटका पहुंचा, फिर मैंगलोर पोर्ट की तरफ पहुंचा। इन सब को क्रॉस करता हुआ 18 नवंबर 1971 की रात को कोचीन पोर्ट जो कि केरला में था, यहाँ पे एक आइलैंड के पास पहुंचता है। और नेक्स्ट डे 19 नवंबर 1971 को ये यहाँ से होते हुए श्रीलंका के ट्रिनकोमल्ले पोर्ट पर पहुंचता है और यहाँ पे अपनी रिफ्यूलिंग और क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करा था। टोटल 2200 नॉटिकल माइल की जर्नी जो थी वो अभी तक कर चुका था। अब यहाँ से कमांडर जफर को जो सीक्रेट सील्ड ऑर्डर मिले थे उनको खोलना था। उनमें से एक लेटर पे लिखा था ओपन एट हाई सीज। तो ये जो सीक्रेट सील्ड ऑर्डर थे इनको कैप्टन जफर खोलता है और इसमें 2 टास्क कंप्लीट करने को लिखे थे। एक लिखा था गो टू मद्रास एंड सिंक
आईएनएस विक्रांत, और दूसरा टास्क ये था कि इन केस आईएनएस विक्रांत को सिंक ना किया जा सके तो विशाखापट्टनम पोर्ट के आसपास पहुंच के माइंस बिछानी है। तो ये जो दूसरा टास्क लिखा हुआ था, ये जो इंडिया ऑपरेशन एक्स के थ्रू पाकिस्तान के शिप्स उड़ा रहा था, उसका बदला लेने के लिए दूसरा टास्क सेट किया गया था। इसीलिए उन सीक्रेट ऑर्डर्स में लिखा गया था कि किसी वजह से अगर पहला टास्क पूरा ना हो पाए तो हर हाल में विशाखापट्टनम पोर्ट के पास माइंस जरूर लगानी है। तो यहां से पीएनएस गाजी की जो टीम थी और कमांडर जफर था, उसको एग्जैक्ट आइडिया लगा था कि इनको यहां पे आईएनएस विक्रांत को गिराने के लिए भेजा गया है। तो कमांडर जफर अपने टास्क को पूरा करने के लिए धीरे धीरे करके आईएनएस विक्रांत की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। और वहीं दूसरी तरफ जो इंडियन इंटेलिजेंस थी, इनको पता चल चुका था कि पीएनएस गाजी बे ऑफ बंगाल तक पहुंच चुका है। और वो इसलिए पता चल चुका था क्योंकि पीएनएस गाजी इस पूरे रास्ते में शॉर्ट मैसेजेस, जिसको शॉर्ट एचएफ बर्स्ट भी कहते हैं, इसके थ्रू पाकिस्तान हेडक्वार्टर से बीच बीच में अपना ट्रांसमिशन ओपन करके बात कर रहा था। तो इन शॉर्ट मैसेजेस को पकड़ने में तो इंडिया के लिए दिक्कत हो रही थी। तो इंडिया क्या कर रहा था उस समय कि पीएनएस गाजी जब अपना ट्रांसमिशन ओपन करता था पाकिस्तान में मैसेज भेजने के लिए, तो उसी छोटे से विंडो को पकड़ के इंडिया क्या करता था, उस फ्रीक्वेंसी पर पावरफुल बैकग्राउंड सिग्नल भेजना शुरू कर देता था, जिससे पीएनएस गाजी और पाकिस्तान के बीच में जो कम्युनिकेशन होता था वो समझने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये शॉर्ट मैसेजेस थे, वो बार बार रिपीट करने पड़ते थे, जिससे ज्यादा देर तक लोकेशन जो थी वो ट्रैक हो पाती थी। तो इस तरीके से इंडियन इंटेलिजेंस को पीएनएस गाजी Wow. So they knew every little moment where it was because of this. The direction finding equipment, however, was vintage and were unable to get accurate fixations of locations, but they had a generalized area. Determine the general area in which PNS Ghazi was located. Genius, absolutely genius. स्पेसिफिक एरिया में है ये पता चल पा रहा था, लेकिन एग्जैक्ट उसकी लोकेशन इतने बड़े समुद्र के अंदर कहां थी वो अभी भी नहीं पता था। They like India was ready. India had like just completely just bamboozled them entirely. They knew everything ahead of time. That's wow. All right, I'm back. I went, got some more coffee because I ran out. Also fed my guinea pigs some carrots because, they were begging and screaming and yelling at me. All right, guys, this is this video, this story is downright amazing. Let's continue. तो अब इसके बाद 28 नवंबर 1971 को गाजी अपने मिशन को पूरा करने के लिए श्रीलंका से निकल चुका था आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए, और श्रीलंका से निकलने के बाद 2 दिन तक ट्रैवल करता है और 22 नवंबर 1971 को वो मद्रास के एरिया में पहुंच के आईएनएस विक्रांत को ढूंढने लगता है। तो अब पीएनएस गाजी जब मद्रास के एरिया में पहुंच चुका था तो जो इंडिया की ईस्टर्न नेवल कमांड थी, इन्होंने क्या कर रखा था, मद्रास पोर्ट के आसपास जो फिशिंग कम्युनिटी रहती है उनमें से कुछ लोगों को बेसिक ट्रेनिंग वगैरह दे रखी थी, जिसमें इनको ऑयल स्लीक, स्नॉर्केल या फिर सबमरीन के ट्रेस से रिलेटेड कुछ भी दिखता। So wait a minute. They also trained the locals. Special plans were taken to inform the various fishing communities in and around the coastal city to act as special lookouts, and this meant explaining to them about oil slicks and what a submarine looked like and how to identify telltale evidence. Okay. था तो ये लोग उसको पहचान जाते थे और जो नियरेस्ट नेवल आउटपोस्ट होती थी उसको रिपोर्ट कर देते थे। तो जब पीएनएस गाजी मद्रास पोर्ट पे पहुंच के आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहा था तो उसी टाइम पे कुछ मछुआरे जो थे उन्होंने And it actually worked out for them. The fishermen reported it. Crazy. A fisherman also reported some oil patches and flotsam as per the Navy's arrangement with them. The divers confirmed the presence of submerged object at depth of about 150 feet at the water. Several floating objects and debris, all of them with American markings, were picked up, and through Vice Admiral Krishnan told the chief of naval staff that it was that he was personally convinced that that he had banked the Ghazi. He demanded more ocular proof, so it's the visible. By 5th of December, divers had identified the submerged object from the silhouette and other characteristics, confirmed without a shadow of a doubt that the sunken object was none other than the wreck of the PNS Ghazi. Whoa, ahead of time. Oh my God, we're getting ahead of ourselves there. Hold up.
hold up. We'll continue. रिपोर्ट कर We'll दिया get था to कि that उनको point. किसी बड़ी सी सबमरीन के ट्रेस दिखे। तो ये जो ट्रांसमिशन की डिटेल्स थी और फिशिंग कम्युनिटी के जो इंटेल्स थे, इन सबको मिला के ये चीज पता चल चुकी थी कि पीएनएस गाजी अब मद्रास के पोर्ट के आसपास ही कहीं पे आ चुका है। और जैसे इस चीज के बारे में वाइस एडमिरल एन कृष्णन को पता चलता है तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। तो अब यहां से वो मन बना चुके थे कि आईएनएस विक्रांत को मद्रास पोर्ट से शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉर होने से पहले वो आईएनएस विक्रांत को पीएनएस गाजी के साथ एंगेज नहीं करना चाहते थे। तो उनके पास अब ऑप्शन बचा था कि आईएनएस विक्रांत को मद्रास पोर्ट से विशाखापट्टनम वाला जो पोर्ट था वहां पे शिफ्ट कर दें। लेकिन मल्टीपल डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि अगर विशाखापट्टनम जो पोर्ट है उसमें भी अगर शिफ्ट कर दें तो जैसे मद्रास पोर्ट तक पीएनएस गाजी पहुंच चुका है तो विशाखापट्टनम पोर्ट तक भी पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि विशाखापट्टनम पोर्ट में भी शिफ्ट करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आईएनएस विक्रांत सेफ रहेगा, सेम सिचुएशन वहां भी रिपीट हो जाएगी। अब ये सारे डिस्कशन जब चल रहे थे तो यहीं से डिसाइड होता है कि अंडमान एंड निकोबार के पास एक सीक्रेट लोकेशन है जिसका कोड नेम था पोर्ट एक्स-रे। Port X-ray. वहां आबादी बिल्कुल भी नहीं थी, पानी बहुत साफ Port X-ray was totally uninhabited place with no means of communication with the outside world, and it was well protected and in the form of a lagoon. Having sailed the fleet away to safety, the major task was to deceive the enemy in thinking the Vikrant was where she was not, and lure the Ghazi to where we could attack her. था और इस लोकेशन का बिल्कुल भी किसी को आइडिया नहीं था। और अच्छी चीज ये थी कि ये बे ऑफ बंगाल के पास में थी, तो अगर इन केस वॉर वगैरह भी स्टार्ट होती है और अगर हम आईएनएस विक्रांत को वहां पे शिफ्ट कर देते हैं सीक्रेट लोकेशन पे, तो आईएनएस विक्रांत को एकदम से बे ऑफ बंगाल में लाना आसान होगा। दूसरी चीज, पानी साफ था, तो कोई अगर पीएनएस गाजी जैसी शिप अगर वहां पे आएगी तो उसको ट्रैक करके उसको गिराना आसान होगा, साफ पता चल जाएगा साफ पानी में। तो ये सारे डिस्कशन होने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए आईएनएस विक्रांत को इस सीक्रेट लोकेशन जिसका कोडवर्ड था पोर्ट एक्स-रे यहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है। अब आईएनएस विक्रांत जो था वो तो शिफ्ट हो गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मद्रास पोर्ट था उस पोर्ट से 12 से 15 माइल्स की डिस्टेंस मेंटेन करके पीएनएस गाजी पाकिस्तान के नेवल हेडक्वार्टर के साथ कोऑर्डिनेट करके कंटिन्यूअसली आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहा था। और पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर जो था वो अपने अलग अलग सोर्सेज जो ग्राउंड पे थे उनसे आईएनएस विक्रांत की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, और जो छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आती थी वो पीएनएस गाजी को एक सीक्रेट कोड के थ्रू भेजता था। तो इस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बना के मद्रास पोर्ट के पास आईएनएस गाजी को ढूंढ रहे थे। और इसी टाइम पे पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर से एक मैसेज भी भेजा गया था, ये उस मैसेज की कॉपी है। इसमें Papa 1 to 3 4, Papa 5 6 7 8, Bravo 1 2 3 4 5 6, Mike. कराची और अरेबियन सी के बीच में एक So the occupied areas are referred to as Papa 1 2 3 4, yada 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 yada. The inner and outer patrol areas of the ships of the Pakistani fleet. Armal torpedoes, assume precautionary stage. लोकेशन थी, उस लोकेशन के बारे में रेफर किया गया है। ऐसे इसमें माइक जो है वो मद्रास का कोड नेम रखा गया है। इस तरीके के मैसेजेस भेज के ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे और आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहे थे। अब एक तरफ ये पाकिस्तान मद्रास पोर्ट के पास आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी तरफ वाइस एडमिरल एन कृष्णन चाहते थे कि पीएनएस गाजी मद्रास पोर्ट की जगह अगर किसी तरीके से विशाखापट्टनम पोर्ट के पास आ जाए तो उसको मार के गिराना आसान होगा, क्योंकि विशाखापट्टनम पोर्ट पे इंडियन नेवी का स्ट्रांग होल्ड था। टेक्निकल कैपेबिलिटी विशाखापट्टनम पोर्ट की बहुत ही अच्छी थी, सोनार, हाइड्रोफोन्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर इक्विपमेंट्स ये सारे यहाँ पे थे। और जियोग्राफी भी ऐसी थी कि एक बार गाजी इधर आ जाता तो नेचुरल एस्केप के जो रूट्स थे वो बहुत कम हो जाते गाजी के पास, तो विशाखापट्टनम के पास गाजी को मारना ज्यादा आसान था। तो अब यहाँ से वाइस एडमिरल एन कृष्णन एक प्लान बनाते हैं। ये जानबूझ के रेडियो कम्युनिकेशन पे ऐसे बात करते हैं जैसे पाकिस्तान को लगे कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम पोर्ट के ही पास है। इन्होंने एकदम बेसिक एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन की ताकि पाकिस्तान इजीली उनको क्रैक करके ये कम्युनिकेशन ट्रेस कर सके और उसको ये लगे। The message were in low-grade cipher, allowing Pakistanis to break the code and be deceived. Wow, it was a ruse, a ruse all along. Man. कि आईएनएस विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम पोर्ट पे आ चुका है। और इसके साथ साथ एक चीज और की इन्होंने, विशाखापट्टनम पोर्ट के आसपास जानबूझ के बल्क में सब्जी के आइटम जो थे वो बहुत ज्यादा ऑर्डर कर दिए। They even faked orders. जैसे आईएनएस विक्रांत जितना बड़ा शिप जब आता है, or maybe not even faked orders. They put in orders in insinuating that it was going to go onto the ship. Wow. जो थे वो बहुत ज्यादा ऑर्डर कर दिए। जब बड़े शिप्स आते हैं, जैसे आईएनएस विक्रांत जितना बड़ा शिप जब आता है तो पोर्ट के आसपास सब्जी वगैरह और खाने की बहुत जरूरत होती है, बल्क में रखना पड़ता है, तो ऑर्डर्स भी बड़े होते हैं।
हाल ये कर दिया गया था विशाखापट्टनम पोर्ट पे, ऐसा लगने लगा था जैसे सब्जी मंडी खुल गई है, इतने ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर दिए गए थे। और इसकी वजह से आसपास के एरिया में ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि आईएनएस विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम पोर्ट पे आने वाला है। तो जो Oh लोकल my God. They even spread word, and then like the Pakistani vegetable food stall spy, a strange series of words. Pakistani vegetable food stall spy overheard this disinformation or this manipulated information in order to trick the Pakistanis, because they knew, oh yeah, that guy down there that running that vegetable stall, he's actually a Pakistani spy. Oh my God. पाकिस्तानी एजेंट जो थे वहां तक भी बात पहुंच गई और उन्होंने ये इंटर पाकिस्तान तक भी पहुंच। I was banking on bizarre rumors being picked up by spies and relayed to Pakistan. I had no doubt that such spies did exist, and I had hoped that they would do their duty. Wow. They they used their own spies against them. That's crazy. पहुंचा दिया। तो ये जो मल्टीपल कोशिश की गई पाकिस्तान को यकीन दिलाने के लिए कि आईएनएस विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम पोर्ट पे है, 25 नवंबर 1971 को ये कोशिश कामयाब हुई। इस दिन ये सारे इंटेल पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर में पहुंचे और सेम डे यानी कि 25 नवंबर 1971 को रात को 11:07 पे इन्होंने पीएनएस गाजी को एक सीक्रेट मैसेज भेजा। ऑक्यूपाई जोन विक्ट्री विद फुल डिस्पैच, इंटेलिजेंस इंडिकेट्स कैरियर इन पोर्ट। ये उस मैसेज की कॉपी है। अब ये मैसेज मिलते ही कैप्टन जफर बिना कुछ सोचे ये रूट पकड़ के मद्रास से विशाखापट्टनम पोर्ट 340 माइल दूर था उस तरफ निकल जाता है। और इस बार जब पीएनएस गाजी विशाखापट्टनम पोर्ट की तरफ निकलता है तो इससे पहले जो वो शॉर्ट मैसेजेस में बात कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर में, वो बिल्कुल बंद कर देता है। कंप्लीट रेडियो साइलेंस पे निकलता है क्योंकि उसको पता था कि इंडिया का विशाखापट्टनम पोर्ट ज्यादा हाईटेक है, वहां पे पीएनएस गाजी के सिग्नल पकड़ना इंडियंस के लिए ज्यादा आसान होगा। तो 25 नवंबर Ironic that they were being traced and detected since the submarine left Pakistan. 1971 को मद्रास से निकलते समय पीएनएस गाजी कंप्लीट रेडियो साइलेंस पे विशाखापट्टनम की तरफ निकल जाता है और 27 नवंबर 1971 की रात को 10 बजे विशाखापट्टनम पोर्ट पे पहुंच जाता है और आईएनएस विक्रांत को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे इंडियन नेवी के लिए ये हो गई थी कि इंडियन नेवी को मद्रास पोर्ट के बाद से पीएनएस गाजी है कहाँ पे, क्योंकि वो कंप्लीट रेडियो साइलेंस पे था, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अब जब एकदम से पीएनएस गाजी गायब हो जाता है, उसका कुछ भी नहीं पता चलता है, तो इंडिया के ईस्टर्न कमांड के हेड जनरल जेकब जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मल्टीपल डिस्कशन वहां पे स्टार्ट हो जाते हैं। उनको डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया ने जो प्लान बनाया पाकिस्तान को पता चल गया है, कहीं वो पोर्ट एक्सरे के पास पहुंच के आईएनएस विक्रांत पे ना हमला कर दे। बहुत सारे डिस्कशन एक साथ स्टार्ट हो गए थे इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर में। अब देखिए इंडिया के मैप पे अगर आप विशाखापट्टनम पोर्ट को देखोगे तो वो ये यहाँ पे है। इसको आप जूम करोगे तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो दो पार्ट में है। एक ये यहाँ पे इनर हार्बर है, यहाँ पे जो शिप्स वगैरह हैं वो खड़े होते हैं, रिपेयर और मेंटेनेंस का काम भी होता है, और ये आउटर हार्बर है। और ये इधर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रिक वाटर है, यानी कि कंक्रीट और स्टोन के वॉल टाइप बना दी जाती हैं। ये बहुत ही जो हैवी लहरें वगैरह आती हैं उनको कंट्रोल करता है और सिक्योरिटी भी मेंटेन करता है। तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये ब्रिक वाटर की वजह से ये एक मेन एंट्री एग्जिट बन जाती है विशाखापट्टनम पोर्ट पे, जिसमें से इंडिया के बड़े शिप्स आते और जाते हैं। और पीएनएस गाजी इसी एंट्री के पास पहुंच चुका था और यहां पहुंचने के बाद पीएनएस गाजी का जो कैप्टन था जफर, उसके पास तीन ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि विशाखापट्टनम पोर्ट का जो इनर हार्बर है इस तरफ आईएनएस विक्रांत को ढूंढता हुआ जाए और जहां पे आईएनएस विक्रांत दिखे उस पे टॉर्पीडो यानी कि अंडर वाटर मिसाइल जो है वो फायर करके उड़ा। Yeah, I mean, in this instance, this seems like a foolish thing to do. I mean, more than likely, the smart thing would be to wait outside of the port for the ship to leave, right? उसको लेकिन विशाखापट्टनम पोर्ट का जो इनर हार्बर था वहां पे वाटर लेवल कम था, 15 मीटर की गहराई थी, तो यहाँ पे पीएनएस गाजी पकड़ा जाता, उसको उड़ा दिया जाता। तो इस वजह से पीएनएस गाजी 2.1 नॉटिकल माइल से ज्यादा पोर्ट के अंदर नहीं जा सकता था। दूसरा ऑप्शन था कि ये आउटर हार्बर के बाहर वेट करे और जब आईएनएस विक्रांत आए तब टॉर्पीडो यानी कि अंडर वाटर मिसाइल जो है उसको फायर करके आईएनएस विक्रांत को उड़ा दे। और तीसरा ऑप्शन था ये जो बड़े बड़े वाटर ब्रेक आप देख रहे हैं इसके बीच में जो एंट्री एग्जिट का जो रास्ता है। I mean, it's a good thing they didn't do the mines, right? Because that would have been hazardous to civilian ships as well.
उसके पास माइंस बिछा दे। तो जो पीएनएस गाजी का जो कैप्टन जफर था वो डिसाइड करता है कि एक तरफ वो अपनी टीम को पेरिस्कोप से आईएनएस विक्रांत का वेट करने के लिए बोलता है ताकि वो पेरिस्कोप से देखते रहे कि आईएनएस विक्रांत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जब तक आईएनएस विक्रांत नहीं मिलता है तब तक ये मेन जो एंट्री एग्जिट थी विशाखापट्टनम पोर्ट की, यहाँ पे माइंस बिछाता है। देखिए माइंस बिछाने की भी एक उसमें ट्रिक थी। जब भी अब बड़ी शिप्स होती हैं जैसे आईएनएस विक्रांत है, जब भी ये मूव करते हैं तो उसके आगे कॉन्वॉय चलता है, तो अगर माइंस ऐसे ही डायरेक्ट लगा देंगे, कॉन्वॉय का पहला शिप आके इस माइन से टकराएगा और वो उड़ जाएगा, लेकिन आईएनएस विक्रांत बच जाएगा। तो ये जो अंडर वाटर माइंस थी इनके अंदर भी नंबर सेट होते हैं। जैसे अगर 10 नंबर सेट कर दिया तो 10 बार शिप जाएगी, उस पर तो कुछ नहीं होगा, और 11वीं शिप जब जाएगी, wait, what? How would they determine that? आएगी तो उसमें धमाका होगा। तो कैप्टन जफर के पास जितनी भी डिटेल्स थी उसके हिसाब से वो 20 नंबर इन माइंस पे सेट करके माइंस लगाना स्टार्ट करता है। दूसरी टीम कॉन्टिन्यूअसली पेरिस्कोप से आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रही थी। तो 28 नवंबर 1971 को कैप्टन जफर यहीं आउटर हार्बर के पास माइंस लगाना स्टार्ट करता है और हर माइन के बीच में 150 मीटर का गैप रखता है और 30 मीटर की डेप्थ मेंटेन करता है, और एक माइन को लगाने में कम से कम 30 से 50 मिनट का टाइम लगता है। तो करीब 40 से 50 मिनट के अंदर ये अपनी पहली माइन लगा लेता है और फिर इसके बाद दूसरी माइन लगाना स्टार्ट करता है। और जैसे ही दूसरी माइन लगा रहा होता है, जो दूसरी टीम थी जो पेरिस्कोप लेके नजर रख रही थी, आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रही थी, उनको दूर से एक शिप आता हुआ दिखता है। एक्चुअल में आईएनएस विक्रांत नहीं था, आईएनएस मगर था। So it was on and around November 28th that Destiny started playing dice with the valiant Ghazi crew. Ghazi was at the periscope depth in order to avoid a direct collision with INS Magar, landing ship tanker, whose presence at the sea surface in the darkness was detected very late due to miscalculated periscope distance reading. Ghazi took an immediate dive. जो अपने नॉर्मल रिपेयर वर्क के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट की तरफ आ रहा था। अब जब पेरिस्कोप में इनको ये शिप दूर से आता हुआ दिखता है तो इनको लगता है कि जब तक वो पास में आएगा तब तक ये दूसरी माइन लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे इनसे मिसकैलकुलेशन हो जाती है। जब तक ये दूसरी माइन लगाते उससे पहले ही शिप इनके पास में आ गया, और जैसे ही पास में आया तो इमरजेंसी में पीएनएस गाजी को लेफ्ट साइड में डाइव लगवाई, वरना टक्कर हो जाती। Wait, what? Okay, the impact was impressive. The impact was massive. Ghazi got struck and tried to stabilize but failed. The metal on one side tore जैसे ही off. 2400 टन से ज्यादा वेट के गाजी ने सडन डाइव मारी तो एकदम वो डिसबैलेंस हो गया और सीधे नीचे जाके Oh my god. The submarine that was already in a steep dive, causing Ghazi to hit seabed hard when it bottomed. और लगने के बाद वहीं से फंस जाता है। बहुत ट्राई करता है निकलने की, लेकिन वहां से निकल नहीं पाता और गाजी के एक साइड के कुछ मेटल के पार्ट टूट के पानी में चले जाते हैं। और क्योंकि इसका झटका इतना तेज था तो गाजी के अंदर जो टॉर्पीडो ट्यूब्स थी, जहां The impact breached the fore torpedo room, which was flooded with water. One of the fire torpedoes was trapped shut in the torpedo tube. से अंडर वाटर मिसाइल फायर होती है, उन सब की पोजीशन हिल जाती है। तो पीएनएस गाजी फंसा तो पड़ा ही था, साथ में ये भी डर खड़ा हो गया था कि The mine later detonated in 1972, but not at this time. Ghazi remained trapped on the seafloor. Wait, so they did it. The Ghazi took evasive maneuvers, but failed. Got its side torn, struck the bottom of the seabed, and got trapped there. मिसाइल जो है वो कभी फायर हो सकती थी। और ये जो आप लोकेशन देख रहे हो, ये यहाँ पे पीएनएस गाजी फंस चुका था। इस लोकेशन के For the next 3 days, 28th, 29th, 30th November, Pakistan Navy headquarters. 17 डिग्री 40.8 मिनट नॉर्थ, 83 डिग्री 21 मिनट ईस्ट। दूसरी माइन तो लग नहीं पाई थी, लेकिन जो एक माइन बिछाई थी इन्होंने वो ऐसी Okay, so the clearing the PNS Ghazi minefield, we completed the allotted task and reported the area cleared. However, no mine was exploded in this process. Look at him. He has to censor the word exploded. Dude, YouTube is too extreme. The fact that neither the sweeping done by that nor the multitudes of ships that have crossed these waters since 1971 without a mine incident leads one to conclude that the PNS Ghazi had managed to lay only one mine before she met her end. लगी रही। ये 1972 में जाके फटी थी, लेकिन इस टाइम पे नहीं फटी। अब गाजी तो यहाँ फंसा पड़ा था। 28, 29 और 30 नवंबर 3 दिन तक पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर में गाजी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि गाजी आखिर है कहां पे। अब
देखिए जो सबमरीन्स होती हैं उसके अंदर दो लॉग बुक मेंटेन होती हैं। एक नेविगेशन लॉग जिसमें सबमरीन की सारी जर्नी, टाइम, पोजीशन, स्पीड ये सब रिकॉर्ड होती है। दूसरी ऑपरेशनल और इंजीनियरिंग लॉग होती है जिसमें उनके फंक्शंस और एक्शन वगैरह रिकॉर्ड होते हैं। तो इसकी नेविगेशन लॉग जो थी वो तो सेम जगह पे रुकी हुई थी, लेकिन ऑपरेशनल और इंजीनियरिंग लॉग जो थी वो मेंटेन रही, जिससे आगे चल के भी ये चीज कंफर्म हुई थी कि ये यहाँ पे फंसा हुआ था लेकिन स्टिल वो एक्टिव था। Huh. The crew made all efforts to make the sub rise till that fateful night between December 3rd and 4th when the vibrations created by depth charge fired from another passing ship exploded the tramp torpedo and triggered a chain of explosions from weaponry mines, torpedoes, etc. from within the sub. अब ये जो पीएनएस गाजी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी पाकिस्तान के लिए। एयर स्पेस बंद था, नॉर्मल जो सी रूट था उसमें ऑपरेशन एक्स के चलते It's a twist. I wasn't expecting that, to be honest with you. Again, like I didn't know too much about this particular incident, so I didn't read into like the fate of Ghazi, right? Like I didn't go into it and like I didn't go down and read this part right here purposely so I could, fully experience it in this. To go down in such a way, like to not even fight. Wow. शिप्स उधर साइड जाने में डर रहे थे। मुक्ति वाहिनी जो थी वो ईस्ट पाकिस्तान में ऑलरेडी गुरिल्ला वॉरफेयर उसने स्टार्ट कर दिया था और इन सब से निपटने के लिए जो पीएनएस गाजी भेजा था वो भी गायब हो चुका था। तो एक तरह से पाकिस्तान ने भी मान लिया था कि पीएनएस गाजी They went ahead and started the war. So they started the start of the war was basically them losing their submarine. They lost their submarine before this war even started. Huh. I wonder what turn of events would be if Ghazi didn't sink that day. Like how would the war have turned out? पाकिस्तान कुछ और एक्शन नहीं करता तो ईस्ट पाकिस्तान ऑलमोस्ट कट चुका था वेस्ट पाकिस्तान से। तो अब पाकिस्तान यहां से फैसला ले लेता है कि 3 दिसंबर 1971 को वो इंडिया के ऊपर वॉर शुरू कर देगा। Unfortunately for Pakistan, this message was intercepted by Indian intelligence. Wow. Of course. 3 दिसंबर 1971 का जो टाइम था वो तो सेट हो गया था कि इस दिन वॉर करनी है, लेकिन इससे 2 दिन पहले 1 दिसंबर 1971 को ये लोग ईस्ट पाकिस्तान में एक सीक्रेट मैसेज भेजते हैं जिसमें ये लोग ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो मर्चेंट शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, इनको बे ऑफ बंगाल में आने के लिए कंप्लीटली मना कर देते हैं। और पाकिस्तान की किस्मत इतनी खराब रहती है कि ये जो मैसेज था ये भी इंडियन इंटेलिजेंस पकड़ लेती है और इंडिया को पता चल जाता है कि पाकिस्तान हमला करने वाला है इंडिया पे। अब इस वॉर में ये पहले से ही डिसाइड हो चुका था कि आईएनएस विक्रांत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और क्योंकि इंडिया को पता चल चुका था कि वॉर कभी भी हो सकती है तो आईएनएस विक्रांत को इस सीक्रेट लोकेशन से बे ऑफ बंगाल में लाना मजबूरी थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि इंडियन नेवी को पीएनएस गाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो कहीं फंसा पड़ा है, एक्चुअल में वो है कहां पे, किसी को कुछ नहीं पता था। ये अज्यूम किया जा रहा था। Yeah, I mean they didn't know, so yeah, for sure this is still something like major to what to try to be weary about. I mean, it just goes to show, man, like you could have the best machinery, the best equipment in the world, but if the operator, isn't up to par, then it doesn't matter. Like it's not going to help you. You're still going to end up failing, right? पीएनएस गाजी बे ऑफ बंगाल में छुप के आईएनएस विक्रांत का वेट कर रहा है और जब पाकिस्तान वॉर स्टार्ट करेगा तब पीएनएस गाजी एक्टिव होगा। तो आईएनएस विक्रांत को बे ऑफ बंगाल में लाना भी था और पीएनएस गाजी से बचाना भी था। तो इससे निपटने के लिए क्या किया जाता है कि एक पुराना डिस्ट्रॉयर शिप था आईएनएस राजपूत, ये विशाखापट्टनम पोर्ट पे आया हुआ था। इसको कुछ टाइम के अंदर डीकमीशन होना था, मतलब कि एक्टिव ड्यूटी से हटना था। ये पुराना हो चुका था। ये जो नया वाला आईएनएस राजपूत है ये वो नहीं है, ये उससे अलग है। इसको 1949 में ब्रिटिशर्स से खरीदा था इंडिया ने। तो वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने प्लान बनाया कि ऐसे डायरेक्ट आईएनएस विक्रांत को बे ऑफ बंगाल में लाने की बजाय आईएनएस राजपूत को ही आईएनएस विक्रांत का डिकॉय बना के लाया जा सकता है और इससे होगा ये कि पीएनएस गाजी जो बे ऑफ बंगाल में घूम रहा है वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो आईएनएस राजपूत को आईएनएस विक्रांत समझ लेगा और पाकिस्तान को जो हमला वगैरह करना होगा वो आईएनएस राजपूत पे करेगा। अब ये प्लान तो बहुत बढ़िया था, लेकिन आईएनएस राजपूत की पूरी टीम के लिए एक जानलेवा मिशन था। इसमें होना Yeah, it was he knew it was a suicidal mission for the Rajput. He was sure that the Pakistani submarine would make Rajput a target the moment hostilities were declared, and he was definite that the Rajput would not return from the mission and that he was giving Rajput as a bait to Pakistan for the safety of Vikrant. I mean, he was ready to die.
He and the crew were ready to die. Wow. ना ये था कि आईएनएस राजपूत अपने सिग्नल्स ऑन करके बे ऑफ बंगाल में जाएगा ताकि पीएनएस गाजी उसको पकड़ सके। इस मिशन में आईएनएस राजपूत के वापस आने के चांसेस बहुत कम थे। तो अब ये सारा प्लान बना के आईएनएस राजपूत के कैप्टन इंद्र सिंह को बुला के सारी चीजें बताई जाती हैं कि ऐसे पीएनएस गाजी पाकिस्तान से आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए बे ऑफ बंगाल में आया हुआ है, खुला घूम रहा है। वो एग्जैक्टली है कहां पे पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अगर उसने आईएनएस विक्रांत को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो ये इंडिया और पाकिस्तान की वॉर के अंदर हारने और जीतने तक पे इंपैक्ट डाल सकता है। और आईएनएस विक्रांत को वैसे भी कुछ हो गया तो पूरे इंडियन नेवी का मोरल डाउन हो जाए। तो आईएनएस राजपूत के कैप्टन इंद्र सिंह ने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा और कहा कि मैं वापस आऊं या ना आऊं, आईएनएस राजपूत जरूर वापस आएगा। और आईएनएस राजपूत की पूरी टीम बिना कुछ सोचे इस जानलेवा मिशन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है। और अगले ही दिन 2 दिसंबर 1971 को तुरंत आईएनएस राजपूत आईएनएस विक्रांत का डिकॉय बनके विशाखापट्टनम पोर्ट से मद्रास वाले रूट पे जाना स्टार्ट कर देता है, जहां उनको लगता है कि पीएनएस गाजी मिल सकता है। पूरे रास्ते आईएनएस राजपूत जो था उसके सिग्नल्स का वॉल्यूम बहुत हाई रखा गया ताकि आसानी से पीएनएस गाजी पिक कर ले उसको। जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे आईएनएस विक्रांत, इनके सिग्नल्स हाई रहते हैं। इसके साथ साथ फेक रेडियो कम्युनिकेशन भी किए गए और ये बोला गया कि आईएनएस विक्रांत मद्रास की तरफ आ रहा है, I तैयारी mean, शुरू कर दो। it's just like, wow, like the determination to set out on such a mission. Because they didn't know that the Ghazi was already, trapped on the seafloor. The determination to set out on the mission they knew they weren't coming back from. It's hardcore. It's hardcore, man. यहां तक कि मद्रास पोर्ट के जो नेवल ऑफिसर इंचार्ज कैप्टन डकवर्थ थे, इनको एन कृष्णन ने एक ओपन कॉल करके कहा कि आईएनएस विक्रांत मद्रास आ रहा है, खड़े होने की जगह बना दीजिए। और ये मैसेज जब कैप्टन डकवर्थ को मिला तो वो बहुत ही हैरान हो गए कि एन कृष्णन ने कितनी बड़ी गलती कर दी, ओपनली ये लाइन बोल दी। अब इसके बाद काफी टाइम तक आईएनएस राजपूत जो था वो सिग्नल अपने ऑन करके पूरे रूट पे घूमता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। अब देखिए, शुरू में मैंने आपको बताया था कि गाजी जब सी फ्लोर पे टकराया था तो कुछ मेटल के पार्ट टूट के गिर गए थे और वो पानी में फ्लोट होने लगे थे। तो वो मेटल के जो पार्ट थे, वो जो फिशिंग कम्युनिटी थी जो ऑलरेडी ट्रेन थी, उनको ये पार्ट मिल गए। उन्होंने ये पार्ट उठा के इंडियन नेवी को दिए और एन कृष्णन ने जब इन मेटल पार्ट्स It को was the fishing team. It was the local fishermen that were trained to identify submarines that found the submarine parts. रिव्यू करवाया तो ये पता चला कि ये पीएनएस गाजी के पार्ट है। और यहां से एन कृष्णन ने एज्यूम कर लिया कि पीएनएस गाजी डूब गया है और आईएनएस विक्रांत अब सेफ है, उसको बे ऑफ बंगाल में लाया जा सकता है। और आईएनएस राजपूत जो था, जो इतनी देर से घूम रहा था अपने सिग्नल ऑन करके, उसको वापस आने को कह दिया जाता है। 3 दिसंबर 1971 का दिन आ गया था। इस दिन आईएनएस विक्रांत बे ऑफ बंगाल में पहुंच चुका था और पाकिस्तान और इंडिया दोनों पीएनएस गाजी को डूबा हुआ मान चुके थे। लेकिन पीएनएस गाजी डूबा नहीं था, वो विशाखापट्टनम पोर्ट के पास फंसा हुआ था। पीएनएस गाजी के जो कैप्टन थे, टीम थी, वो सब जिंदा थी। और फिर सेम डे 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान वॉर शुरू कर देता है। इंडिया के 8 से ज्यादा एयरफील्ड, अमृतसर, अंबाला, आगरा, अवंतीपुर, पठानकोट, श्रीनगर, इन सब जगह बैक टू बैक हमला कर देता है। In a dramatic escalation of hostilities, Indian forces have launched coordinated strikes across East Pakistan today as refugees continue to pour into India that could reshape South Asia. और इंडियन नेवी क्या करती है, उसकी जो ईस्टर्न फ्लीट थी इंक्लूडिंग आईएनएस विक्रांत, इसको ईस्ट पाकिस्तान की तरफ लगा के पूरी तरीके से नेवल ब्लॉकेट कर देती है। अब एक तरफ वॉर चल रही है, दूसरी तरफ पीएनएस गाजी नीचे फंसा हुआ है और तीसरी तरफ आईएनएस राजपूत विशाखापट्टनम वाले रूट से, जिस तरफ गाजी फंसा हुआ था, उस तरफ से वापस आने लगता है ताकि ईस्टर्न फ्लीट जो थी उसको जाके ज्वाइन कर सके। अब रात में 11:40 पे आईएनएस राजपूत जब वापस आ रहा था और विशाखापट्टनम पोर्ट के पास पहुंचता है जहां पे गाजी फंसा हुआ था, तो आईएनएस राजपूत के सोनार रूम के अंदर जो टीम थी, उन्होंने राइट साइड में सोनार वाइब्रेशन डिटेक्ट करी, मतलब कि साउंड वेव्स और प्रेशर डिस्टर्बेंस डिटेक्ट की। ये वाइब्रेशन एक्चुअल में गाजी की थी, जो बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, उसकी थी। अब क्योंकि वॉर चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो आईएनएस राजपूत की टीम ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। जिस लोकेशन से वाइब्रेशन आ रही थी उसके पास पहुंच के कैप्टन इंद्र सिंह ने 2 डेप्थ चार्ज फायर करवाए। ये बहुत ही हैवी होते हैं। जब ये 2 डेप्थ चार्ज फायर हुए तो बहुत जोर से धमाका हुआ और आसपास जो लोग थे उनके घरों में हल्का अर्थक्वेक भी आ गया। इस पूरे समुद्र वाले एरिया में हैवी वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई और इसकी वजह से हुआ ये कि गाजी के अंदर जो टॉर्पीडो ट्यूब्स थी, जो ऑलरेडी अपनी लोकेशन से हट चुकी थी, हिल चुकी थी, वो अपने Okay, so
I wonder, could they have potentially have freed themselves? Oh man, so it was the sinking of the Ghazi. ये 2 डेप्थ चार्ज फायर हुए तो बहुत Two tremendous and simultaneous explosions were heard by the Coast Battery, which reported it in the Maritime Operations Room. The explosions shattered quite a few window panes around the coast. The Rajput got a heavy jolt after the deafening blasts. और आसपास जो लोग थे उनके घरों में हल्का अर्थ The sinking of the Ghazi, several thousand people waiting to hear the Prime Minister's broadcast to the nation also heard the explosion, and many came out thinking it was an earthquake. As per our arrangement with them, some fishermen reported oil patches and some floats. The command diving team were rushed to the spot and commenced detailed investigation. So could the Ghazi have freed itself? And so it ended up the Rajput, who went out on the suicide mission, came back and ended up sinking it. It did end up actually shooting and sinking and blowing up the Ghazi. earthquake भी आ गया इस पूरे समुद्र I वाले mean, we'll probably never know, obviously, right? If it could have potentially freed itself. एरिया में हैवी वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई और इसकी वजह से हुआ ये कि गाजी के अंदर जो टॉर्पीडो ट्यूब्स थी जो ऑलरेडी अपनी लोकेशन से हट चुकी थी, हिल चुकी थी, वो अपने आप फायर हो जाती हैं। तो उसकी भी बहुत तेज आवाज आती है। अब वो कहां जाके लगी ये नहीं पता चल पाया, लेकिन बहुत हैवी आवाज के साथ वो फायर हो जाती है। और फिर थोड़े टाइम बाद आईएनएस राजपूत की टीम ने देखा तो जिस जगह से वाइब्रेशन आ रही थी वो बंद हो जाती है और आईएनएस राजपूत के कैप्टन जो थे ये सारी डिटेल एनक्रिप्शन जो थे उनको भेज के आगे बढ़ जाते हैं। अब अगले दिन सुबह के टाइम में जो लोकल मछुआरे थे सेम एरिया से उनको मेटल और लाइफ जैकेट मिलती है। उन लाइफ जैकेट्स पे USS डायब्लो लिखा था। ये नाम पहले गाजी का था जब यूएसए के पास था। अब ये चीज जब पता चलती है तो नेक्स्ट डे That's crazy. They were still using the stuff that was they couldn't even have within like the what? They had it for 7 years. They had it for 7 years and they were still holding on to the 7+ year-old life vests and stuff. Like don't those things have an expiration date? Like wouldn't you I don't know, routinely change that stuff out? But no, things had USS Diablo on it still. Come on, man. You got to change that stuff out. ये नाम पहले गाजी का था जब यूएसए के पास था। अब ये चीज जब पता चलती है तो नेक्स्ट डे 4 दिसंबर 1971 की मॉर्निंग में 12:15 पे सेम लोकेशन जहां आईएनएस राजपूत ने 2 डेप्थ चार्ज किए थे वहां पे आईएनएस अक्षय और कमांड क्लियरेंस डाइविंग टीम को भेजा। ये लोग क्या करते हैं, इनके पास पीएनएस गाजी की हर एंगल से फोटोग्राफ थी, उनको लेते हैं अपने साथ और सेम जगह पे नीचे जाते हैं और हर एंगल से जो नीचे सबमरीन थी उसको मैच करते हैं। और फिर इसके बाद 5 दिसंबर 1971 को 9:14 पे ये लोग कंफर्म करते हैं कि नीचे 17 डिग्री 40.8 मिनट नॉर्थ, 83 डिग्री 21 मिनट ईस्ट में डूबी हुई जो सबमरीन है वो पीएनएस गाजी ही है। इसके बाद और भी मल्टीपल टीम गई गाजी का एनालिसिस करने। पीएनएस गाजी को जब खोला गया तो उसके अंदर डेड बॉडीज मिली, एक बुक भी मिली जिसका नाम था हाइड्रोग्राफिक करेक्शन बुक। उस पे पीएनएस गाजी लिखा हुआ था। गाजी की लॉग बुक मिली, घड़ी मिली जो 12:15 पे रुकी थी एग्जैक्टली तभी जब आईएनएस राजपूत ने फायर किया था। इसके साथ साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, जो सीक्रेट कोड ट्रांसफर हुए थे पीएनएस गाजी और पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर में, They were still able to find all of this? That's crazy. सीक्रेट कोड भी मिले, आइडेंटिटी प्रूफ्स मिले, कुछ लॉग बुक्स मिली, मशीन इन्फो, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंडियन नेवी हेडक्वार्टर में पहुंचा दी जाती है। डीप एनालिसिस होता है, हर एक चीज को मैच किया जाता है और फिर उसके बाद ये पूरी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ निकल के आती है। ये गाजी की ओरिजिनल फोटोग्राफ है और जब एक एक चीज मैच होने के बाद ये पूरी डिटेल कंफर्म हो जाती है तो उसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में गाजी के साथ क्या हुआ ये सबको बताते हैं। पीएनएस गाजी के खत्म होने के बाद 1971 की जो वॉर थी उसमें आईएनएस विक्रांत ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसकी वजह से 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को वॉर में सरेंडर करना पड़ा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। और जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि उडू बिजनेस सूट जिसमें एचआर, अकाउंटिंग, सीआर, wow dude, ऐसे 45+ एप्स इंटीग्रेटेड हैं बड़े और छोटे हर बिजनेस के लिए, उसको जरूर ट्राई करें। थैंक यू। What an intense story.
Like there were so many twists and turns and so many little spy thriller like espionage style things. I mean, it's crazy. Oh my god. I learned a lot too. Oh man. I mean, the thing that struck most to me here is that what was it? Operation X? We got to go back to it. We got to find it. What is this? Refugee camps, huge loss of money. I think this was it. Where I mean, I didn't know that that India was training, yeah, here. I didn't realize India was training the guerrilla warriors inside of East Pakistan. I didn't know that. I really didn't. What was this? What was this at C2P? C2P is what it was called, right? Okay. Camp 2 Plaza. That's one thing that stuck through me through the whole episode was that India did I mean they and then the guerrilla warriors blew up a bunch of ships, and that was like led to the whole reason why the Ghazi was sent to blow up the aircraft carrier, and then then Pakistan struck, and the freaking the submarine collided with another ship and sunk down to the bottom, and it was basically trapped there until the Rajput came and destroyed it. This story had so many twists and turns. I'm simply blown away. I'm genuinely blown away. Man, real life is better than any story we could write. Whew. Guys, link to the video is in the description down below. Please go and take a look at it. I'm going to read a couple comments. Just read a couple of them. I'm sure a lot of them are going to be like, "Oh, you did amazing work. Oh, you did fantastic." Stuff like that. I've realized that. The INS, yeah, the captain, true hero. He left on a mission that he was certain he was going to die. I mean, just to have like the courage and the fortitude to do something like that is outstanding. Uh the Magar didn't even know whom he sunk by mistake, right? The actual hero was the INS Magar. He 5-star, do nothing. Ghazi went after diving. When I go to work, a scandal happens. Everyone talked about the INS Vikrant, INS Rajput, but it was actually the INS Magar who sank Ghazi. Yeah, without even realizing it. INS Magar, eat 5-star, do nothing. Amazing when I did this. Love from Bangladesh. We are never taught about these contributions of India in detail, and maybe this is why. Maybe this is why there's Hindu persecution going on. Maybe this is why modern day Bangladesh is becoming buddy buddy with Pakistan again. Bangladesh is going close to Pakistan. This is a long-term blunder. Bangladesh will realize this too late. True. Very true. Hi, Bangladesh. Be like Dubai or UAE or Indonesia. Muslim, modern, educated countries, not like War, Pakistan, Syria. I'm so addicted to this video that I can't even skip his ad of Udu. Great man said once how many Ghazis came and how many Ghazis left. Indian Army then, Indian Army now. Salute for Indian Army. Brother, he's bigger than the entire Bollywood. INS Rajput is first destroyer on Indian Navy. It's crazy how so much complex missions happen across our country, and we common citizens don't even realize it. The way they just maintain the confidentiality is beyond my understanding. The video is absolute cinema. The editing quality is enhanced incredibly.
I'm from Bangladesh. Respect. You are the father of Dhruv Rathi. Okay. Who's loving our Indian army? I love my India with the core of my heart. I enjoyed watching the video. One small mistake I found. Nitish said INS Ghazi, so I don't take him wrong. Oh, I mean, it happens. I mean, misspeaking happens quite often, right? I do it very regularly. Please, one video for the greatest spy agent, Ravindra Kaushik? How do you pronounce that? I'm not sure. Who's this guy? I don't know anything about him. Wow, what a wonderful video. You did justice to this story. Hats off. Man. Man, man. Crazy. $2 super chat saying thanks. Please, Place is in Nadia district. You must have heard the great battle of Plazi. We are from Plazi. Mastermind, your video too much informative. Dark web? Make a video on the dark web. Dark web isn't that, flamboyant as people make it out to be. It's just the regular web. It's fine. There's nothing like shady about it. In fact, you can see more horrific and disgusting things on the clear web than you can on the dark web. Thanks for making and sharing the video. This video is very interesting and informative. It felt like I was watching a movie. Yeah, it really did. The twists, the churns, the storytelling, it drew me in. We help Bangladesh and see the results. All right, guys. Again, link to the video in the description down below. Please go and take a look at it. With that being said, I am out of here. Take care. Goodbye.